devotees for today's Recording in progress. गीतामृता। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे आज के श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में। कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नामोच्चारण के साथ, तो मेरे साथ दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीचैतन्यवी ईश्वरम। So, reading from Srimad Bhagavatam, Canto first, chapter, new chapter, chapter number 15. पांडवों का समय पर गृह त्याग। पांडवास रिटायरिंग टाइमली। और श्लोक 1 उसकी शुरुआत करें, उसके पहले एक विशेष श्लोक हम लोग सभी मिलके चैंट करेंगे नरसिम्हदेव का, और उसका मीनिंग बस देखेंगे। ओके। prayers. आप सभी देख पा रहे होंगे, इंग्लिश में है, कोई बात नहीं है। महाराज करवा रहे हैं जपा। Reading from Srimad Bhagavatam. I am going to read a prayer by Prahlad Maharaj to Narasimhadeva. This prayer appears in the 5th canto, the 18th chapter. The 18th chapter of the 5th canto is entitled The Residents of Jambu Dvipa Offer Prayers. Jambu Dvipa
has different tracts of land known as different Varshas. So in that Jambu Dvipa, there is one tract of land known as Hari Varsha. In that Hari Varsha, the topmost devotee is Prahlad Maharaj. And Prahlad Maharaj, along with his servants and all the residents of Hari Varsha, they worship Narsimhadev and they offer wonderful prayers to him. So one of the prayers offered by Prahlad Maharaj and all the servants of Prahlad and in the residents of that Hari Varsha is this 8th verse of this 18th chapter of the 5th canto. So please repeat after me. Om Namo बोलिए भगवते Narsimhaya नरसिंहाया Namastejase नमस्तेजस्तेजसे Aviravirbhava आविराविर्भव Vajranakha वज्रनखा Vajradamshtra वज्रदंष्टा Karmashayan कर्माशयान् Randhaya रन्धया Randhaya रन्धया Tamo तमो Grasagrasa ग्रसग्रस Om Swaha ॐ स्वाहा Abhayam अभयम् Abhayam अभयम् Atmani आत्मनि Bhuyishtha भूयिष्ठा Om Shram. ॐ क्षौम् A very special prayer. It's full of so many power, so much of power. So the meaning will make it very clear how powerful this mantra is. So please repeat this once again. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. ॐ नमो भगवते नरसिंहाय Namastejastejase नमस्तेजस्तेजसे Aviravirbhava आविराविर्भव Vajranakha वज्रनखा Vajradamshtra वज्रदंष्ट्रा Karmashayan कर्माशयान् Randhaya Randhaya रन्धय रन्धय Tamograsagrasa तमोग्रसग्रस Om Swaha ॐ स्वाहा Abhayam Abhayam अभयम् अभयम् Atmani आत्मनि Bhuyishtha भूयिष्ठा Om Shram. ॐ क्षौम् The meaning of this, first let us hear recite the word for me. These be real desires, kindly vanquish. Abhayam, fearlessness. हम लोग डायरेक्टली Money ट्रांसलेशन की तरफ चलेंगे in my mind. Bhuyishtha or seed of mantras offering prayers to Lord Nrsimha. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. श्रील प्रभुपाद Translation. I offer my respectful obeisances unto Lord Nrsimhadeva, the source of all power. O my Lord, who possesses nails and teeth, just like thunderbolts, kindly vanquish our demon-like desires for fruitive activity in this material world. These appear in our hearts and drive away our ignorance, so that by your mercy we may become fearless in the struggle for existence
in this material world. So this is a prayer by Prahlad Maharaj, the Lord Nrsimhadeva. So please repeat this translation after me. सभी रिपीट करेंगे साथ. I offer my respectful obeisances I offer my respectful obeisances unto Lord Nrsimhadeva, unto Lord Nrsimhadeva, the source of all power. the source of all power. O my Lord, O my Lord, who possesses who possesses nails and teeth, nails and teeth, just like thunderbolts, just like thunderbolts, kindly vanquish kindly vanquish our demon-like desires our demons like desires for fruitive activity for fruitive activities in this material world. in this material world. Please appear in our hearts Please appears in our heart and drive away our and ignorance, drive away our ignorance, so that by your mercy so that by your mercy we may become fearless we may become fearless in this struggle for existence in this struggle for existence in this material in world. this material world. Purport by Hare Krishna. So इस श्लोक का ट्रांसलेशन समझने का कोशिश करेंगे. यहाँ पर यह जो श्लोक है यह प्रेयर है. श्लोक प्रेयर प्रार्थना प्रहलाद महाराज कर रहे हैं. हाँ, 5वें स्कंद में है ये. हरिवर्ष, हम लोग किस वर्ष में है? भारतवर्ष में. और प्रहलाद महाराज एज ऑफ नाउ कहाँ प्रेजेंट है? हरिवर्ष में. भारतवर्ष में नारद मुनि है. भारतवर्ष के ऊपर उत्तर में हिमालय के उस पार ओरिजिनल हिमालय, अभी वाला हिमालय जिसके उस पार तो चाइना है. ये जो हिमालय है इसका एक इससे भी बड़ा एक हिमालय है. उस हिमालय के उस पार किम पुरुष वर्ष है. किम पुरुष वर्ष, वहां पर कौन है? वहां पर हनुमान जी है, प्योर डिवोटी, जो कि गाइड कर रहे हैं सबको. यहां पर नारद मुनि है और नर नारायण ऋषि हैं बद्रिकाश्रम में. वहां पर रामचंद्र जी की पूजा करते हैं हनुमान जी किम पुरुष वर्ष में. और किम पुरुष वर्ष के उत्तर में वहां फिर एक माउंटेन आता है, उसके उत्तर में हरिवर्ष. भारतवर्ष, किम पुरुष वर्ष, हरिवर्ष. ओके. जम्मू द्वीप में कितने वर्ष हैं? 8 वर्ष. सो हरिवर्ष में प्रहलाद महाराज जो है वो नरसिम्हदेव की पूजा करते हुए, प्रार्थना करते हुए श्लोक बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं मैं भगवान नरसिम्हदेव को सादर दंडवत नमस्कार करता हूं, जो कौन है? सारे शक्तियों के स्रोत है. जितनी भी शक्तियां हैं वो उसके स्वामी हैं, उसके उद्गम हैं. और भगवान नरसिम्हदेव के जो नेल्स है, उनकी जो नाखून है और उनकी जो टीथ है वो वज्र के समान कठोर है. हिरण्यकश्यप का वध उन्होंने हथियार से नहीं किया, नाखून से और दांतों से कर दिया. वज्र के समान कठोर वो उनके नाखून है और उनकी टीथ है. तो अब उनसे क्या प्रार्थना कर रहे हैं? उनके पिताजी का तो कब का वध हो चुका है, भगवान ने उनका उद्धार कर दिया. अब वो इस श्लोक में देखिए वो बोल रहे हैं काइंडली, वो बोल रहे हैं कृपा करके क्या करिए, आप मेरे हृदय में जो आसुरी इच्छाएं हैं उसका नाश कर दीजिए. आसुरी इच्छाओं का नाश कर दीजिए. किस लिए करना है ये? तो वो आसुरी प्रवृत्ति जो है हमारी, वो हर समय इस संसार में फ्रूटिव एक्टिविटीज, फ्रूटिव मतलब
फल वाला काम जो होता है ना, हम सारे लोग फल फल की आशा से सारे कार्य करते हैं। मतलब भौतिक कार्य में, जो इस भौतिक संसार में लगे हुए हैं, उन सारे इच्छाओं का जो कि आसुरी है। आसुरी कैसे हो सकती है? अगर कोई व्यक्ति अपने घर के विषय में सोच रहा है, भोजन पानी कपड़ा मकान के विषय में सोच रहा है, तो आसुरी कैसे हो सकता है? आसुरी इस प्रकार से है कि वह व्यक्ति सारी चीजें तो भगवान से लेता है, लेकिन उसका उपयोग वह केवल और केवल अपने लिए कर रहा है, तो उसको चोर बोला जाता है। इस तरीके से आसुरी हो गया। आसुरिक लोग हर समय केवल अपने विषय में सोचते हैं। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं, आप मेरे सारे आसुरी प्रवृत्ति का नाश कर दीजिए, जो कि हमारी फ्रूटिव एक्टिविटीज, मतलब फल के साथ वाली जितने हमारी क्रिया है इस संसार में है, उन इच्छाओं के लिए उन इच्छाओं को नाश कर दीजिए, और हमारे हृदय में आप अपीयर हुई। क्यों? क्योंकि आपके अपीयरेंस से, आपके अवतरण से क्या होगा? हमारे हृदय में जो अज्ञान है वो भाग जाएगा, उसका नाश हो जाएगा, वो चला जाएगा। अज्ञान का नाश करिए। कैसे? मेरे हृदय में, हम सबों के हृदय में अवतरित होकर के। और बोल रहे हैं, जब आप अज्ञान का नाश करेंगे अपनी कृपा से, हम सारे लोग इस संसार में, ये कौन सा संसार है? ये ऐसा नहीं कि मौज मस्ती, हम लोग को लग रहा है कि मौज मस्ती करने आए। जेल में कौन मौज मस्ती करता है? क्योंकि हम लोग नशे में हैं, तो हमको लगता है ओ ये तो आनंद का जगह है, इधर खूब मजा करो। मजा करने का नहीं जगह है ये। पदम पदम यप यत विपदाम। तो वो बोल रहे हैं, इस जगह जहां की स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यहां पर अपने आप को के अस्तित्व को बचाए रखने में हम सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। देख रहे हैं ना कैसे कंट्री कंट्री के बीच में फाइट चल रहा है, देशों के बीच में। हर हर एक कंट्री, अलग अलग कंट्री देशों के बीच में फाइट चल रहा है। तो आपकी कृपा से जब आप हमारे हृदय में वास आएंगे, तो अज्ञान का नाश होगा, और फिर हमें, हम सबों को अभय प्राप्त होगा। और वो अभय कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब जो है अभी इस भौतिक संसार में स्ट्रगल कर रहे हैं अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रहलाद महाराज नरसिम्हा से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे हृदय में जो असुर है, कौन है वो असुर? क्योंकि नरसिम्हा का अवतरण किसके लिए होता है? हिरण्यकश्यप के लिए होता है। तो आप हमारे हृदय में अवतरित होइए, और हिरण्यकश्यपु जो हमारे, हम सबों के हृदय में बैठा हुआ है, वो क्या है? हमारी सारी आसुरी डिजायर्स, हमारी डिमोनियक डिजायर्स, हमारी आसुरी प्रवृत्तियां जो है ना, काम क्रोध लोभ मोह, इतनी सारी इच्छाएं बना के बैठे हैं, उसका नाश कर दीजिए। क्योंकि तभी जाकर के हमारे हृदय से अज्ञानता जाएगा, और और हमको अभय प्राप्त होगा। हम सारे लोग डरे हुए भयभीत हैं। ओके। भय का एकमात्र कारण है कि हम, हमारे हृदय में जो भगवान है, हम सबों के हृदय में जो भगवान है, सब भगवान है, मतलब परमात्मा, नरसिम्हदेव हो, सेम कृष्णा राम नरसिम्हा परशुराम, ये सारे एक ही पर्सन है, अलग अलग रूपों में है। नरसिम्हदेव उग्र रूप में है। क्यों? इनके नाखून और इनकी इनके जो दांत हैं, टीथ्स, वो थंडरबोल्ट की तरफ, और बहुत ही भयानक उग्र रूप है। जनरली आप ऐसा रूप नहीं देखते हैं भगवान कृष्ण का, विष्णु का, राम का। सौम्य रूप होता है, पर ये रूप जो है, उग्र रूप किसके लिए है? राक्षसों के लिए, असुरों के लिए। और यहां पर वो प्रार्थना कर रहे हैं कि कलयुग में हम लोगों के हृदय में ही असुर बैठा हुआ है, हृदय में, मन में, इंद्रियों में, सबका नाश कर दीजिए। तो बहुत अच्छा प्रेयर है ये। इसका, इसकी प्रार्थना करनी चाहिए। इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, आप हमारे साइट पे जाएंगे इस्कॉन बैंगलोर के, तो अभयम के नाम से मिल जाएगा, हमने कई बार शेयर भी किया था। सो नाउ रीडिंग फ्रॉम कैंटो फर्स्ट चैप्टर 15, श्लोक संख्या फर्स्ट।
इधर है। एक मिनट, कई सारे। यस। श्लोक संख्या 1। सूत उवाच एवं कृष्ण एवं कृष्ण सख एवं कृष्ण सखः कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नानाशंकास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेष कर्षितः। सूत गोस्वामी ने कहा, केवल अनुवाद है, अनुवाद शिला प्रभुपाद जी, छोटा सा तात्पर्य भी है। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अनु गुप्ता माता जी रीडिंग करिए। अनु गुप्ता माता जी क्लास में हैं? रेवा गुप्ता माता जी हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, पढ़िए। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन महाराज युधिष्ठिर की सशंकित जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भी कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। तात्पर्य तात्पर्य अत्यधिक संतप्त होने के कारण अर्जुन का गला रुंध सा गया। अतएव कभी। अतएव वे महाराज युधिष्ठिर की विभिन्न सशंकित जिज्ञासाओं का ठीक से उत्तर नहीं दे पा रहा था। गुड। हरे कृष्णा सो प्रभु जी। यहाँ पर इस श्लोक में बतलाया जा रहा है कि अर्जुन का गला, अर्जुन का गला ना ठीक से काम नहीं कर रहा है। वो अत्यधिक शोकाकुल अवस्था में है। ऐसा क्यों? स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सेपरेशन। भगवान कृष्ण के साथ जो उसका एक मजबूत संबंध था, और भगवान कृष्ण इस धराधाम से अपनी लीला को समाप्त कर गोलोक वापस जा चुके हैं। तो वो युधिष्ठिर महाराज के द्वारा जो कई सारी शंकाएं, उनके मन की जो शंकाएं हैं, उसका उत्तर देने में सक्षम नहीं है। उनका जो गला है ना, वो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, चोक्ड हो गया है, चोक्ड अप। और इसीलिए वो प्रॉपर तरीके से, अच्छे ढंग से बोल नहीं पा रहे हैं। जनरली हम देखते हैं ना, जब कोई व्यक्ति शोकाकुल होता है या बहुत खुशी होता है, आनंद में होता है, तो उसकी आवाज लड़खड़ाती रहती है, कई बार चोक्ड अप हो जाती है, फंस जाती है, रुक जाती है। तो वही हालत है यहाँ पर कि जो अर्जुन है वो आ, बड़े ही शोकाकुल अवस्था में है, ग्रीफ ग्रीफ स्ट्रिकन पोजिशन में। श्लोक संख्या 2। सुद गोस्वामी बोल रहे हैं इन सारे श्लोकों को। शोकेन शुष्यत शोकेन शुष्यत वदन हृत सरोजो हत प्रभः विभुं तम एवानुस्मरन् नाशक्नोत प्रतिभाषितुम। उसी का एक्सपेंशन है जो पिछला श्लोक है, उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ पर। अनुवाद हर्षिता माता जी पढ़िए। शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनुवाद। शोक से अर्जुन का मुंह तथा कमल सदृश हृदय सूख चुके थे, अतएव उसकी शारीरिक कांति चली गई थी। अब भगवान का स्मरण करने पर वह उत्तर में एक शब्द भी ना बोल पाया। हरे कृष्ण। सो अभी भी इस श्लोक में यही बतलाया जा रहा है
कि चूंकि उसकी शारीरिक कांति, मतलब उसके फिजिकल बॉडी की जो कांति है, चमक है, वो चली गई, और उसके चेहरे की चमक जो कि कमल के समान था, वो सूख चुका है। ऐसा कारण क्या है? क्योंकि वो भगवान की याद में खोए हुए हैं। ओके, इसीलिए एक शब्द नहीं बोल पाए। श्लोक संख्या 3। कृच्छेन संस्तभ्य शुचः पाणिनामृज्य नेत्रयोः परोक्षेण समुनु समुन्नुद्ध प्रण्याऔतकंठय कातरः। अनुवाद शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। नेक्स्ट रीडिंग भावना गुप्ता माता जी पढ़िए। भावना गुप्ता हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी। Yes. उसने बड़ी कठिनाई से आंखों में भरे हुए शोक अश्रुओं को रोका। वह अत्यंत दुखी था क्योंकि भगवान कृष्ण उसकी दृष्टि से ओझल थे और वह उनके लिए अधिकाधिक स्नेह का अनुभव कर रहा था। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। तो इस श्लोक में बतलाया जा रहा है कि अर्जुन जो है अपनी अश्रुओं को, आंखों की जो आंसू हैं, उनको बड़े ही डिफिकल्टी के साथ, कठिनाई के साथ वो उनको रोक पा रहे हैं, है ना। अब कोई व्यक्ति रो रहा है और बट फिर भी उसकी आंखों से आंसू को वो रोके रखा है, ओके, तो वो अंदर ही रहेगा। और यही कारण था कि वो बहुत ही शोकाकुल है, शोक में है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनकी आंखों से ओझल हो गए हैं और उनका जो प्रेम है वह उनके हृदय में बढ़ता जा रहा है। सेपरेशन में प्रेम बढ़ता है। सो यहाँ पर अर्जुन के केस में भी भगवान कृष्ण के लिए जो अफेक्शन है, जो प्रेम है, वो बहुत बढ़ रहा है। भगवान उनकी आंखों के सामने नहीं है और उन्होंने बहुत कठिनाई से अपनी अश्रुधारा को रोक रखा है, आंखों से बाहर नहीं आने दे रहे हैं, इसीलिए अब वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। श्लोक संख्या 5, सॉरी 4। सख्यम मैत्रीं सौहृदं च संस्मरन् नृपम् अग्रजम् इति आह भाष्प गदगदया गिरा। गिरा मीन्स गिरिजा। हाँ, गिरा, गिरा मीन्स वाणी। ओके, तो अब वो बोल रहे हैं अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी, तात्पर्य है नहीं, हाँ है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यस, वी विल रीड नेक्स्ट। सुनीता माता जी हैं? सुनीता माता जी नहीं है, ओके। सुषमा कौल माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान कृष्ण को तथा उनकी शुभकामनाओं, आशीषों, घनिष्ठ पारिवारिक संबंध एवं उनके रथ हाँकने का स्मरण करके अर्जुन का गला रुद आया और उस भारी सांस लेता हुआ बोलने लगा। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। परम पुरुष अपने शुद्ध भक्त के साथ सारे संबंधों में पूर्ण है। श्री अर्जुन भगवान के विशिष्ट भक्तों में से है, जो सख्य भाव का आदान प्रदान कर रहे हैं और अर्जुन के साथ भगवान का व्यवहार सर्वोच्च कोटि की मित्रता को प्रदर्शित करता है। वे अर्जुन के न केवल शुभचिंतक थे, अपितु उनको लाभ प्रदान करने वाले भी थे और इसे अधिक परिपूर्ण बनाने के लिए उन्होंने सुभद्रा का विवाह सुभद्रा का विवाह उससे करके उसे पारिवारिक संबंध में भी बांध लिया था।
इसके भी ऊपर भगवान ने अपने मित्र की युद्ध के संकटों से रक्षा करने के लिए अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। और जब उन्होंने पांडवों को विश्व पर शासन करने के लिए स्थापित कर दिया तो वे सचमुच प्रसन्न हुए थे। अर्जुन ने ये सब एक के बाद एक स्मरण किया और इस तरह ऐसे विचारों से अभिभूत हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आज इस श्लोक में सेम पोजीशन है जो कि पिछले अध्याय में युधिष्ठिर महाराज का हुआ था। आप लोग को याद होगा, उन्होंने द्वारका वासियों के विषय में एक एक करके स्मरण करना शुरू किया, है ना, सारे फैमिली मेंबर्स के विषय में। और बाद में बलराम जी का स्मरण करते हैं। जब बाद में कृष्ण जी का स्मरण करते हैं तो वो भगवान कृष्ण की बहुत सारी लीलाओं का स्मरण करते हैं। तो ये स्वभाव होता है, मान्यता होता है। जब हम किसी व्यक्ति का स्मरण करते हैं तो क्या स्मरण करते हैं? ऐसा नहीं कि उसका चेहरा ही केवल हमारे सामने आता है, नहीं। केवल चेहरे से काम नहीं चलेगा। चेहरे मतलब व्यक्तित्व से काम नहीं। व्यक्तित्व का अर्थ होता है वो व्यक्ति और उस व्यक्ति से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं ना, उसके द्वारा किए गए कार्य, उससे किया गया बात वार्तालाप, हाँ, तो उससे जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं वो सब आ जाता है व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में। और जैसे सामान्यतः व्यक्ति ऐसे ही रोता है ना, कोई मर जाता है तो क्यों रोता है? ओ वो नहीं रहे, क्यों? उनसे जुड़ी हुई चीजें उसको स्मरण आती है, उसको याद आती है सारी चीजें। अदरवाइज कोई व्यक्ति क्यों शोकाकुल अवस्था में जाएगा? किसी के शरीर को कोई शरीर छोड़ चुका है तो यहाँ पर भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण जा चुके हैं वापस, फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। तो अर्जुन सख्यम मैत्रीम सौहृदम च, भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए क्या क्या है? सख्यम, उनके सखा हैं, वेल विशर्स। मैत्रीम और सौहृदम, जो हर समय उनके लिए अच्छा सोचता है, जो उनका मित्र है। हाँ, तो और बहुत ही घनिष्ठ मित्र है। इतना ही नहीं, सारथ्यादिशु, इतने अच्छी मित्रता है उनके बीच, संबंध है कि वो अपने मित्र का सारथी बनना भी पसंद करे। राजा होकर के सारथी बन रहे हैं। नृपम अग्रजम इति, और जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो उनसे बड़े हैं, है ना। तो इन सारे जो उनके पूर्व में जितने भी घटनाएं घटित हुई हैं, उनके साथ की जितनी यादगार चीजें हैं, उन सब का स्मरण कर रहे हैं वो। और यही कारण है बाष्प गद गदया, अब वो बहुत जोर जोर से सांसें ले रहे हैं और बहुत ही ओवरवेल्म्ड, मतलब अंदर से बिल्कुल अब वो जो है भर चुके हैं। और अब वो किसी बात पे कोई बोलने के लायक हो गए, क्योंकि अंदर बहुत शोकान है। ओके, एक श्लोक और देखेंगे। अब देखिए, इतना होने के बावजूद अब अर्जुन बोलने जा रहे हैं कुछ, सुनिए। अर्जुन उवाच वंचितो महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा येन मे अपहृतम तेजो देव विस्मापनम महत्। वंचितो हम महाराजा, हे राजा, अपने भाई को बोल रहे हैं, हे राजन, वंचितो हम, हरि हरि भगवान हरि, बंधु रूपिणा,
जो हमारे घनिष्ठ मित्र के रूप में स्वयं भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु थे, हे राजा, अब मैं उनसे वंचित हो गया हूं, वो नहीं है, उन्होंने अपनी लीलाएं समाप्त कर ली हैं, और उनके कारण ये ना मैं अपहृतम, अपहरण हो गया है। किसका? तेजो, मेरे पराक्रम अपहृतम। अर्जुन का पराक्रम, जो गांडीवधारी अर्जुन है, जिसने भीष्म, कर्ण, द्रोण सबको परास्त किया भगवान की कृपा से, उनका पराक्रम क्या हो गया है? तेज क्या हो गया है? अपहृतम तेजो। और वो कैसा पराक्रम था? देव विस्मापनम महत, जो कि महत था, अत्यधिक पावरफुल था। हाँ, और बड़े ही आश्चर्य, देवता लोग भी हमारे इस पराक्रम को देख करके आश्चर्य करते थे, क्योंकि उन्होंने इंद्र को और हाँ, शिव जी तक को के साथ युद्ध किया था अर्जुन ने, तो वो भी उनके पराक्रम को देखकर आश्चर्यचकित थे। वैसा पराक्रम भी जो है वो चला गया। क्यों? क्योंकि जो हरिना बंधु रूपिणा है, अब वो छोड़ करके हमको चले गए। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा, सॉरी, हाँ, यस, अनुगुप्ता माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। अर्जुन जय। ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान श्री हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस प्रकार मेरा प्रबल पराक्रम, जो देवताओं तक को चकित करने वाला था, अब मुझ में नहीं रह गया है। तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता 10.41 में श्री भगवान कहते हैं, कोई चाहे कितना ही शक्तिशाली तथा संपत्ति, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा भौतिक विषयों में ऐश्वर्यवान क्यों न हो, उसे मेरी पूर्ण शक्ति का एक तुच्छ अंश ही समझो। अतएव कोई भी स्वतंत्र रूप से श्री भगवान से शक्ति प्राप्त किए बिना शक्तिमान नहीं हो सकता। जब श्री भगवान पृथ्वी पर अपने नित्य मुक्त पार्षदों के साथ अवतरित होते हैं, तब वे न केवल अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अपितु वे अपने पार्षद भक्तों को भी अपने अवतार का उद्देश्य पूरा करने हेतु आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 4.5 में भी कहा गया है कि श्री भगवान तथा उनके नित्य पार्षद पृथ्वी पर अनेक बार अवतरित होते हैं, किंतु जहाँ श्री भगवान सभी विभिन्न अवतारों की भूमिकाओं का स्मरण रखते हैं, वही पार्षद उनकी परम इच्छा से उन्हें भूल जाते हैं। इसी प्रकार जब श्री भगवान इस धरा से अंतर ध्यान होते हैं, तब वे समस्त पार्षदों को अपने साथ लेते जाते हैं। श्री भगवान ने अर्जुन को जो पराक्रम तथा शक्ति प्रदान की थी, वह श्री भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए थी, किंतु जब ये उद्देश्य पूरा हो गया तो अर्जुन से आपातकालीन शक्तियां वापस ले ली गई, क्योंकि स्वर्ग के निवासियों को भी चकित करने वाली अर्जुन की इन प्रबल शक्तियों की ओर आगे आवश्यकता नहीं रह गई थी। वे उनके भगवत धाम वापस जाने के निमित्त नहीं थी। यदि अर्जुन जैसे महान भक्त को या स्वर्ग के निवासियों को श्री भगवान शक्ति प्रदान कर सकते हैं एवं शक्ति वापस भी ले सकते हैं, तो उन शूद्र प्राणियों के विषय में क्या कहा जा सकता है, जो ऐसे महात्माओं की तुलना में नगण्य है। अतएव इससे शिक्षा ये मिलती है कि श्री भगवान से प्राप्त की हुई शक्ति पर किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए, अपितु विज्ञ मनुष्य को श्री भगवान के प्रति ऐसे वरदान के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और ऐसी शक्ति का उपयोग श्री भगवान की सेवा करने हेतु करना चाहिए। श्री भगवान ऐसी शक्ति को कभी भी वापस ले सकते हैं। अतएव ऐसी शक्ति तथा ऐश्वर्य का सदुपयोग ये है कि उन्हें श्री भगवान की सेवा में लगाया जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये श्लोक है, जिसमें कुछ समझने की चीजें हैं। सबसे पहली बात, अर्जुन ने बोला, चूंकि भगवान ने अपनी लीला समाप्त कर ली है, मेरा पराक्रम जो था, जो देवताओं को आश्चर्य करने वाला था, वो चला गया। अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 10वें अध्याय का श्लोक संख्या 41। भगवान बोलते हैं, तेजस्वी नाम तेजहा, आई एम द तेज। भगवान बोलते हैं, आई एम द पावर ऑफ द पावरफुल।
बलम बलवताम चाहम तेजस्वी नाम हम, तेजो तेजस्वी नाम हम। भगवान ने क्या बोला कि मैं बलवान व्यक्ति का बल हूं, और जो तेजस्वी नाम है उसका तेज हूं। प्रोविस और पावर, ये दो चीजें होती है। ओके, सो वो भगवान बोलना ये चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति में कोई भी योग्यता इस भौतिक संसार में है, वो योग्यता मुझसे आया है। इसलिए सदैव उस व्यक्ति को उसका प्रयोग मेरी सेवा के लिए करना चाहिए, और कभी उसका अभिमान नहीं करना चाहिए, कभी भी। और वो मेरे अंश मात्र से है। भगवान बोलते हैं कि मेरे एक अंश से है इस संसार में जितनी भी शक्तियां जिन जिन लोगों के पास है। अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं इस 10वें अध्याय में, एकांशितो स्थितो जगत एकांशिनो, एक अंश। उसी श्लोक में आगे बोलते हैं कि एक फ्रैक्शन, बोलते एक छोटा सा मेरा एक बस स्पार्क है, जिससे पूरा का पूरा संसार जो है वो उसमें शक्ति है, उसमें चमक है और सब कुछ है। समझ रहे हैं? इस संसार में जितने भी व्यक्ति जो रूपवान है, गुणवान है, धनवान है, शक्तिमान है, सौंदर्यवान है, ज्ञानवान है, बलवान है, वो सारी शक्तियां भगवान की शक्ति का एक अंश मात्र है। और वो सारी शक्तियां भगवान जब प्रकट होते हैं तो अपने नित्य पार्षदों को, नित्य पार्षद मीन्स भगवान के नित्य शुद्ध भक्त जैसे अर्जुन है, तो उनको वो अपनी शक्ति प्रदान कर देते हैं। और जब उनकी लीला समाप्त होती है तो वो अपने पार्षदों को भी लेके चले जाते हैं, शक्तियां भी अपनी ले लेते हैं। तो भगवान को तो ये सारी चीजें याद होती हैं, लेकिन भगवान के भक्त को भगवान की ही कृपा से भगवान उनको, उनकी यादाश्त को खत्म कर देते हैं। जैसे अर्जुन को याद नहीं था कि भगवत गीता का ज्ञान करोड़ों वर्ष पहले उसको भी दिया गया था, जब उन्होंने सूर्य देव को दिया था। अर्जुन को याद नहीं है, भगवान को याद है। ओके, तो उसी प्रकार से शक्तियां भी, अर्जुन की शक्तियां जो है वापस चली गई, क्योंकि भगवान की लीलाएं समाप्त हो गई हैं। तो अब अर्जुन के भी वापस जाने का समय आ गया था। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हैं, भगवान इस धराधाम से अंतर्ध्यान हो गए हैं, अर्जुन की भी शक्तियां वापस चली गई हैं। तो ये बहुत बड़ा संकेत। इन सारी चीजों को सुनकर के युधिष्ठिर महाराज क्या अनुमान लगाएंगे, ओ शायद अब हम लोगों का भी कार्य यहां समाप्त हो चुका है। समझ रहे हैं? इस चैप्टर का नाम देख रहे हैं ना, क्या है? पांडवास रिटायर्ड टाइमली। अब उनको ये आभास हो गया, ओ अब हमारा भी जो है संन्यास लेने का, महाप्रयाण करने का समय आ चुका है। अब इसीलिए वो तो कृपा जी यहाँ पर एक चीज ये लिख रहे हैं कि अर्जुन जैसे महान भक्त की शक्तियां की गई जब भगवान चले गए। हाँ, तो एक नॉर्मल साइज संसार का जो जीव है उसकी शक्ति क्या है? यहाँ तो व्यक्ति शक्तिशाली कुछ समय के लिए रहता है ना, कुछ 10-12 साल ही शक्ति रहती है, बाद में खत्म हो जाती है। और अगर पॉलिटिशियंस और किसी उसकी बात करें तो वो तो जब तक गद्दी पे बैठे तब तक उसके पास कुछ शक्ति है। तो इस प्रकार से हमें इन सारे शक्तियों और ऐश्वर्यों का सदुपयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सारी शक्तियां भगवान की सेवा के लिए हमको प्रदान की जाती हैं, क्योंकि वो शक्तियां भगवान की शक्तियां हैं। उस शक्ति में क्या क्या आता है? बल की शक्ति, शारीरिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, धन, ऐश्वर्य, रूप, गुण, ज्ञान, ये सारी चीजें भगवान की सेवा के लिए है। अगर कोई व्यक्ति सन्यासी है, त्याग, लेकिन वो सन्यास का प्रयोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहा है, नेम फेम के लिए कर रहा है। हम बहुत बड़े योगी हैं, हम बहुत बड़े सन्यासी हैं, यूजलेस, वेस्ट ऑफ सन्यास, है ना। कोई बहुत ज्ञानवान है, लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग वो भौतिक चीजों के लिए कर रहा है ना। भगवान की प्रसन्नता के लिए वो दूसरों को भगवान के विषय में नहीं बतला रहा, उसका ज्ञान बेकार है। वैसे ही सौंदर्य, वैसे ही गुण, हाँ,
वैसे ही धन, आपके पास धन है तो जैसे प्रहलाद महाराज, युधिष्ठिर महाराज, ध्रुव महाराज, इन सारे लोगों ने अपने धन का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए किया। अगर कोई व्यक्ति धन होने के बावजूद नहीं करता है तो उसका धन जो है वो तो उसी को खा जाएगा। वो उसको और सेंस ग्रेटिफिकेशन में इतना लगा देगा कि उसका यहाँ से जाना तो असंभव भी होगा, वो बार बार जन्म लेकर के रिपीटेड बर्थ एंड डेथ में इधर ही आता रहेगा। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर इन सारी चीजों को समझने का है इस श्लोक से कि हमें हमारे पास जो भी गुण है, जो भी धन है, जो भी शक्तियां हैं, जो भी ऐश्वर्य है, उसे हमको भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं तो अर्जुन की शक्तियां चली गई थी, तो आम तुच्छ मनुष्य जीव की शक्तियों का क्या वैल्यू है। ओके, सो इस प्रकार से आज का क्लास सेशन समाप्त करते हैं। आज का जो जपा है वो अनुगुप्ता माता जी ही करवाएंगी। सभी जप माला ले लीजिए, मैं लॉग आउट करूंगा। ओके, सभी अपने जप माला को ले लेंगे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय निताई गौरंग की जय। जय प्रहलाद नरसिम्हा देव भगवान की जय। जय राज श्रीमद भागवतम की जय। जय देवी तुलसी महारानी की जय। जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी अपने अपने जप माला को ले लीजिए। माता जी तैयार हैं, सभी मिलकर के जपा करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस माता जी, प्लीज स्टार्ट। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी